दोष ना पाहो जोग परमेश्वर ते भुलया व्यापन सबे रोग। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। परम सत्कारी योग गुरु रूप खालसा साध संगत जी आपा बड़े ही वडभागे हाँ। चबर चतर तख्त दे मालक दसां पातशाहियां दी जोत जुग जुग अटल गुरता बदी ते विराजमान। दसां पातशाहियां दी जोत धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज। सतगुरां दे हजूरी दे विच जुड़ के बैठे गुरु प्यारी साध संगत जीओ। सतगुरां ने बेअंत रहमत कृपा कीती परसों रोज तो धुर की बाणी आए फिर सगली चिंत मिटाई जी के अखंड पाठ साहिब क्रम कराए गए सन। जिन्हों के अज भोग पाए गए हैं भोगा उपरंत रागी सिंह पासों आप जी ने कीर्तन श्रवण किया है। कुछ को चेहरा दास को भी हुक्म होया है आप संतां के दर्शन करन का। आओ जिन्ना को चेहरा सतगुरु जी कृपा करते हैं मन दियां गुरतियां नूं एकाग्र कर सतगुरां दे चरणां पास ध्यान नूं जोड़ के उस सच्चे करतार की वडियाई के नाल आपां सारियां ने जुड़ना है। आओ विचार परम करन तो पहला सारे ही रसना नूं करो पवित्र सारे ही वज वज के आपो सतनाम साहिब जी। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। तब तक कर्म प्रभावने दोष न पाहो जोग परमेश्वर ते भुलया व्यापन सबे रोग। आज संक्रांत वाले दिन सतगुरु जी कृपा करते हैं। आज के महावाक अनुसार गुरु गरीब नवाज जी पंचम गुरुदेव शहीदां दे सिरताज बाणी के बोए थे शांति के पुंज सतगुरु जी कृपा करते हैं कि हे देव कि जिन्ने भी तो इस दुनिया के ऊपर आके कर्म कीते हैं चाहे माड़ा कर्म चाहे चंगा कर्म वो तेरे ही कर्मा का लेख है तेरे ही भोगी हुए कर्म हैं। कर्तव्य कर्म कमावने दोष ना काहू जोग। हमारे कर्म की भाई किसी को दोष देना नहीं पड़ता वो तेरा आपदा बीजिया होया है। दत्ता दोष ना देव किसी दोष कर्मा अपने जो ने किया सो ने पाया दोष ना दीजे अवर जना। भाई कर्म की पे तू आप जो बीजिया है वो ही उगड़िया है। तू किसी को भी आदि जो बीजिया है उसका दोष नहीं दे सकता। जे तू चंगा बीजिया तेरू चंगा मिलेगा माड़ा बीजिया माड़ा मिलेगा। जिस प्रकार का तू
ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ ਉਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਤੈਨੂੰ ਫਲ ਮਿਲੇਗਾ ਰੇ। ਵੇ ਮੁਖ ਹੋਏ ਰਾਮ ਤੇ ਆਪਣਾ ਜਨਮ ਵਿਜੋਗ। ਕਤਕ ਕਰਮ ਕਮਾਵਣੇ ਦੋਸ ਨ ਕਉ ਜੋਗ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੇ ਭੁੱਲਿਆ ਵਿਆਪਕ ਸਭੇ ਰੋਗ। ਤੂੰ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੋਂ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਭੁੱਲਿਆ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੇ ਭੁੱਲਿਆ ਵਿਆਪਨ ਸਭੇ ਰੋਗ। ਤੈਨੂੰ ਹਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਰੋਗ ਆ ਕੇ ਉਸਨੇ ਫੜ ਲਿਆ, ਤੈਨੂੰ ਗ੍ਰਸਤ ਕਰ ਲਿਆ। ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਪਰ ਰੋਗ ਹਨ। ਇਸ ਜੀਵ ਨੂੰ ਮਾਇਆ ਦਾ ਵੀ ਰੋਗ ਹੈ, ਕਾਮ ਦਾ ਵੀ ਰੋਗ ਹੈ, ਕ੍ਰੋਧ ਦਾ ਵੀ ਰੋਗ ਹੈ, ਮੋਹ ਦਾ ਵੀ, ਅਹੰਕਾਰ ਦਾ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਜੀਵ ਨੂੰ ਰੋਗ ਗ੍ਰਸੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਰਨ ਕੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੇ ਭੁੱਲਿਆ ਵਿਆਪਨ ਸਭੇ ਰੋਗ। ਤੈਨੂੰ ਹਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਰੋਗ ਵਿਆਪ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੂੰ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਵਾਸ ਦਿੱਤੇ ਸੀ ਕਿ ਤੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਾ ਚੰਗੇ ਕਰਮ ਕਰੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਰਮਾਂ ਕਰਕੇ ਤੇਰਾ ਮੁਖ ਉਜਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਰ ਤੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆ ਕੇ ਮਾੜੇ ਕਰਮਾਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਹੀ ਲੱਗਿਆ ਰਿਹਾ। 24 ਘੰਟੇ ਮਾਇਆ ਦੇ ਮਗਰ ਮਾਇਆ ਕਰਦਾ, ਉਸ ਮਾਇਆ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹੀ ਰਿਹਾ। ਹਰ ਟਾਈਮ ਮਾਇਆ ਕਮਾਉਣ ਦੇ ਸੁਪਨੇ। ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਜਦੋਂ ਭੁੱਲ ਗਿਆ, ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਆ ਕੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਹੀ ਨਾ ਕੱਢਿਆ ਕਿ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ, ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕੁਝ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਜਾਵੇ। ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਭੁੱਲਿਆ, ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਸਾਰੇ ਹੀ ਰੋਗਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਫੜ ਲਿਆ। ਵੇ ਮੁਖ ਹੋਏ ਰਾਮ ਤੇ ਆਪਣਾ ਜਨਮ ਵਿਜੋਗ। ਵੇ ਮੁਖ ਹੋਏ ਰਾਮ ਤੇ ਲੱਗਣ ਜਨਮ ਵਿਜੋਗ। ਹੁਣ ਤੂੰ ਇਹ ਜੀਵ ਵੀ ਮੁਖ ਹੋਏ, ਤੂੰ ਵੀ ਮੁਖ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਰਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੋਂ। ਤੂੰ ਮਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਮੁਖ ਨੂੰ ਕਰਕੇ ਵੀ ਮੁਖ ਹੋਏ ਰਾਮ ਤੇ। ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਬੈਠਾ, ਭੁੱਲਣ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਤੂੰ ਵੀ ਮੁਖ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਫਿਰ ਲੱਗਣ ਜਨਮ ਵਿਜੋਗ ਹੈ। ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਇਸ ਜਨਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਜੋਗ ਕਹੀਏ, ਵਿਛੋੜਾ। ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਜੋ ਪ੍ਰੇਮ ਸੀ ਉਸ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਮਿਲਾਪ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਤੈਨੂੰ ਕਈ ਜਨਮਾਂ ਦਾ ਵਿਛੋੜਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਕਈ ਜਨਮ ਪੈ ਕੀਟ ਪਤੰਗਾ, ਕਈ ਜਨਮ ਪੈ ਜ਼ਮੀਨ ਕੁਰੰਗਾ। 84 ਲੱਖ ਜੋਨ ਸਬਾਈ, ਮਾਨਸ ਕੋ ਪ੍ਰਭ ਦੀ ਵਡਿਆਈ। ਇਸ ਪਾਵੇ ਤੇ ਜੋ ਨਰ ਚੁਕੇ, ਸੋ ਆਏ ਜਾਏ ਦੁਖ ਪਾਏਗਾ। ਜਿਹੜੀ ਪੌੜੀ ਤੈਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਸੀ, ਇੱਕ ਤੇਜ ਮਿਲੀ ਸੀ ਤੈਨੂੰ, ਇੱਕ ਮਨੁੱਖਾ ਜੀਵ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਉਸ ਮਨੁੱਖਾ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲੇਖੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ। ਤੂੰ ਕੋਈ ਰੱਬ ਦਾ ਕਰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਚੰਗਾ ਕਰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਤੂੰ ਮਾੜੇ ਪਾਸੇ ਲੱਗਿਆ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਤੂੰ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੈਨੂੰ ਕਈ ਜਨਮਾਂ ਦੇ ਵਿਛੋੜੇ ਪੈ ਗਏ ਹਨ। ਹਾਂ, ਅਜੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਹੈ, ਟਾਈਮ ਹੈ। अब करो आयो रे एक नाम बोलो बोलो, आन बोलो नारी नारी, मत भरम भुलो भुलो हे जीवा। किने तू भुल के बैठ जावे, किने तू उस वाहिगुरू की भजनबंदगी विच लग जावे। जिहड़े तेरे ये जन्मां दे विछोड़े हन, ये सारे दूर हो जाणगे। पर जिन्ना चिर तू उस वाहिगुरू तो दूर है, फिर तेनू कई जन्मां दे विछोड़ कई विछोड़ा लग्या रवेगा। जिनमें पौड़े हुए जितने माया भोग। जिनमें पौड़े हुए जितने माया भोग। एक छिड़ दे विच पौड़े हुए जिन्हें भी तेरे माया के इकट्ठे किए हुए पदार्थ सन, वो सारे एक छिड़ दे विच पौड़े हो गए ना। वो जिन्हें तो माया इकट्ठी की, वो सारी माया हुण तेनू एक कौड़े कदों होए, जदों तेनू कोई रोग आके ग्रस गया, जदों तेनू कोई बीमारी ना इलाज लग गई, जिसका कोई इलाज नहीं, जब तेरी माया एक थां ते ही घरी रह गई, तेरी माया
ਉਹੀ ਕਹਿ ਚਿੱਤੜੇ ਮਾਇਆ ਭੋਗ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਉਸ ਰੱਬ ਨੂੰ ਵਿਸਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਕਈ ਜਨਮਾਂ ਦੇ ਤੈਨੂੰ ਵਿਛੋੜੇ ਪੈ ਗਏ ਹਨ। ਹੁਣ ਜੋ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਮਾਇਆ ਦਾ ਪਦਾਰਥ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਹੁਣ ਕੌੜਾ ਜਿਹਾ ਜਾਪਦਾ ਹੈ। ਤੈਨੂੰ ਮਾਇਆ ਤੇਰੀ ਹੈ, ਪਰ ਤੇਰੇ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤੇਰੀ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਵਿੱਚ ਨਾ ਕੋਈ ਕਰ ਸਕੈ, ਕਿਰਤੈ ਰੋਵੈ ਰੋਜ। ਵਿੱਚ ਨਾ ਕੋਈ ਕਰ ਸਕੈ, ਕਿਸ ਤੇ ਰੋਵੈ ਰੋਜ। ਹਰ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੋਂ ਜੁਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਚਲਿਆ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਤੇਰਾ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਿਚੋਲਾ ਗਿਰੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦੱਦਾ ਦੋਸ਼ ਨਾ ਦੇਉ, ਕਿਸੇ ਦੋਸ਼ ਕਰਮ ਆਪਣੇ ਆ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਉਹ ਸਾਡਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ। ਜੋ ਮੈਂ ਕੀਆ ਸੋ ਮੈਂ ਪਾਇਆ, ਦੋਸ਼ ਨਤੀਜੇ ਅਵਰ ਜਨਾ। ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰਾ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚੋਲਾ ਗਿਰੀ ਵਿੱਚ ਨਾ ਕੋਈ ਕਰ ਸਕਾ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਵੇ ਰੋਜ਼। ਫਿਰ ਇਹ ਜੀਵ ਕਿਸ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਰੋਜ਼ ਰੋਵੇ। ਜਦੋਂ 84 ਲੱਖ ਦੇ ਗੇੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਵੇਗਾ, ਫਿਰ ਕਿਸ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਰੋਵੇਗਾ। ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਰੋਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਰੋਵੇਗਾ ਵੀ, ਪਰ ਜੀਵ ਦਾ ਕੋਈ ਸਹਾਇਕ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਦਾ ਉਤੋਂ ਤੱਕ ਹੱਥ ਪੱਲਾ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਜਮਾਂ ਦੀ ਮਾਂ को ਛਡਾ ਦੇਵੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਉਸ ਦੀ ਵਿਚੋਲਾ ਗਿਰੀ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਕੀਤਾ ਇਸੂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਵਿਦਿਆ ਧੁਰ ਸੰਜੋਗ। ਫਿਰ ਕੀਤਾ ਕਿਸੂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦਾ ਨਾਲ। ਕੋਈ ਕਵੇ ਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਕੁਝ ਕਰ ਲਵਾਂਗਾ, ਉਸ ਜੀਵ ਨੂੰ ਬਚਾ ਲਵਾਂਗਾ। ਜਮਾਂ ਦੀ ਤਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸੇ ਲਾ ਇਲਾਜ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦਾ ਗਰਸਿਆ ਹੋਇਆ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਕੀਤਾ ਕਿਸੂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਲਿਖਿਆ ਤੁਰ ਸੰਜੋਗ ਹੈ। ਜੋ ਤੇਰੇ ਧੁਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੈ, ਧੁਰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਤੋਂ ਤੇਰੇ ਸੰਜੋਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਤੇਰੇ ਮੱਥੇ ਦਾ ਲੇਖ ਹੈ, ਉਹ ਹੋ ਕੇ ਹੀ ਰਹੇਗਾ। ਜੇ ਤੇਰੇ ਮੱਥੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜੋ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਨਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸੱਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਰ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਪ੍ਰਭ ਮਾਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਕਰਤਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਤਾਕਤ ਹੈ ਜੋ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮੱਥੇ ਦੇ ਲੇਖਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਟਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਸਮਾਂ ਆਇਆ, ਇੱਕ ਮਾਈ ਆਈ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਜੁੜ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਮਾਈ ਆਈ, ਮੇਰੀ ਪੀੜੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਅਜਾਨ ਬਾਹੋ ਬੰਦੀ ਛੋੜ ਦਾਤੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਿਸ ਦਾਤ ਤੇ ਆਪਾਂ ਜੁੜੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਇਸ ਦਾਤ ਦੀਆਂ ਵਡਿਆਈਆਂ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮੇਰੀ ਪੀੜੀ ਦਾ ਅਸਥਾਨ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਇੱਕ ਬੁੱਢੀ ਮਾਈ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਗਈ, ਕਰਨ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਇੱਕ ਪੁੱਤ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ੋ। ਮਾਰੇ ਕਰਨ ਲੱਗੇ, ਮਾਈ ਤੇਰੇ ਭਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਪੁੱਤ। ਹੁਣ ਮਾਈ ਰੋਂਦੀ ਹੋਈ ਵਾਪਸ ਨੂੰ ਚੱਲੀ ਹੈ। ਅੱਗੂ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਮਿਲੇ ਹਨ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਮਾਤਾ ਕਾਹਤੋਂ ਰੋਂਦੀ ਹੈ? ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਦਰ ਹੈ, ਜੋ ਵੀ ਇਸ ਦਰ ਤੇ ਆਇਆ ਉਹ ਹੱਸਦਾ ਹੋਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਇਸ ਦਰ ਤੇ ਆ ਕੇ ਰੋ ਕੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਮਾਤਾ ਕਹਿੰਦੇ, मैंने सुनिया सी कि गुरु नानक का दर बड़ा ही वड्डा है, बड़ा ही उच्चा है, बड़ा ही सुच्चा है। जो भी इस दर ते आउंदा है झोली रखता है, वो झोलियां दियां भर के लैके जांदा। पर अज मैं निमाणी, मैं निताणी इस दर तो भी खाली जा रही हाँ। भाई गुरदास जी कहन लगे, माता तेनू मंगना नहीं आया, तेनू मंगण की जांच नहीं आई है। ये मेरी पीढ़ी के मालक ये दाता नूं देण हार हन। हर भाई साहब ने माता नूं समझाया, सेवा थोड़ी मंगन बहुता, असीं सेवा करते थोड़ी मंगते बहुता है, क्योंकि जिद्दी को झोली होगी उन्ना समान पवेगा। कोई बैग आके जितना तू होगा, कपड़े होंगे कोई पहन के उस दे विच, पर सेवा साडी थोड़ी है, मंगना ज्यादा। और आज गुरु हरगोबिंद साहब जी मेरी पीढ़ी के मालक शिकार को चले हैं।
माता ने आके अगे घोड़े दियां वांगा कर लिया। कहन लगी महाराज एक पुत दी दान बख्शो। महाराज कहन लगे माता तेनों कहा सी कि तेरे नसीबां दे विच पुत नहीं लिखिया। उसे टाइम भाई गुरदास जी की सिखाई हुई गल नूं दात कलम शाही अगे एक पेपर नूं अगे जाके रख दिता। कहन लगी महाराज जे मेरे नक्कर दे विच पुत नहीं लिखिया, मेरे कर्मां विच पुत नहीं लिखिया, तो आप ही करतार हो, आप ही रब हो। उत्ते भी आप लिखनहार हो, इत्ते भी आप लिखनहार हो। करो कृपा मैनू निमाणी नूं एक पुत दी दात बख्शो। हुण गुरु हरगोबिंद साहिब जी ने उस पेपर नूं अपने हत्थ विच लैके अते कलम के नाल जदों एका पाउण लगे, हुण गुरु जदों कृपा करदा संगत जी, उदों घोड़े का पैर हिलिया है। वो कहते हैं पुट्ठा सापा पै गया। अज भी किसी को शक होवे, कोई तर्कवादी तर्क करे, अंमृतसर जिले का चंबा सारे को बड़ा नगर है, अज भी उस पिंड दियां 7 पत्तियां हैं। अज भी कोई जाके दर्शन कर सकता। ये गुरु मेरी पीढ़ी के मालक गुरु हरगोबिंद साहब जी की दाता हैं। पर कोई लैण वाला होवे संगत जी, कोई मंगण वाला होवे उस दाते को। एक माई आई सतगुरां दे दरबार दे विच, कहण लगी मैनू मंगना नहीं आउंदा। महाराज कहण लगे जिस तरह तेनू मंगना आउंदा है मंग लै। महाराज नूं कहण लगी कि महाराज तुसी पापी हो, मैं बख्शणहार हां, तुसी गुनहगार हो, मैं बख्शणहार हां, तुसी निमाणे हो, मैं बख्शणहार हां। कहना सी कि मैं निमाणी हां, तुसी बख्शणहार हो। पर कहण लगी महाराज तुसी पापी, मैं बख्शणहार। फिर कहण लगी ना महाराज गलती हो गई, मुंह चों निकल गया कहना सी कि तुसी बख्शणहार, मैं पापी हां। मारे कहण लगे माई तेरी पहले वाली जो गल तू कही वो तेरे दिलों निकली है। जब तेरे वास्ते गुरु नानक का दर खुला है, जो दाता लै गया तो गुरु नानक के दर तू लै सकती है। क्योंकि गुरु नानक का दर जदों तो गुरु नानक देव जी ने मारिया सिक्का जगत विच गुरु नानक निर्मल पंथ चलाया, उस निर्मल पंथ दे विच सतगुरु जी झोलियां ही भरते रहे हैं। जिथे गुरु नानक का नाम आउंदा उन्हां दे संगी साथी भाई मरदाने का नाम आउंदा है। क्योंकि बचपन तो ही भाई मरदाना जी गुरु नानक देव जी के संगी साथी सन। एक कवि चार लाइना लिखता है, वो बहुत सोहना लिखता। वो कहता गुरु नानक को मरदाना थोड़ा जिहा वड्डा सी, तो जदों भी उन्होंने घर के कोल लंघदा मरदाना गुरु नानक नूं छेड़ के जांदा, क्योंकि रबाब बजाउणी आउंदी सी। रबाब के नाल आके धुन बजाउंदा तो बच्चे नूं छेड़ के जांदा। जिस तरह आ भी आप बच्चे नूं छेड़ दिंदे आ, बच्चे नूं कुछ कह देना जा, उसी तरह वो मरदाना गुरु नानक देव जी नाल खेड़दा सी। एक दिन गुरु नानक देव जी मरदाने के घरे चले गए। जदों मरदाने के घरे गए, मरदाने की माता गुरु नानक खत्रियां का बच्चा है, ये अपने घरे आके भ्रिष्ट हो जाएगा, इसको घरे छड्ड के आ। महाराज कहण लगे कि हे मां, तेरे विच भी रब की जोत है, मेरे विच भी वही जोत है, तेरे विच खून है, तेरा शरीर है, मेरा भी वही शरीर है, फिर मैं बड़ा तू नीवी, ये गल की बनी ना। वो माई कहण लगी मरदाने की माता कि हे नानक ये दुनिया का असूल पड़ता का बनाया हुआ है, इस करके तू साडे घरे आके तू भ्रिष्ट हो जाएगा, जा मरदाने इसको इस दे घरे छड्ड के आ। हुण समां बीतदा गया, गुरु नानक देव जी कहण लगे मरदानिया आ लिया तेनों दुनिया की सैर कराइए, तेनों दुनिया घुमा के लियाइए। मरदाना कहण लगे महाराज घर दे विच पता मरासियां का जन्म है, सादा काम है मंग के खाना, किसी राजे महाराजे के दर ते जाके उन्हां दीयां वडियाइयां बैंड करनियां ते मंगना। मैं अपने घर नूं चलाउंदा हां, जे मैं चला गया घर दे विच कमाउण वाला कोई नहीं। गुरु नानक देव जी कहण लगे मरदानिया
तू हुण गुरु नानक दा हो गया है, हुण तैनूं मंगण दी लोड़ नहीं, तैनूं आ दुनिया दी सैर करावांगे पर साडे 3 वचन मन्नेगा। ਉਹ ਮਰਦਾਨਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਦੱਸੋ ਕਿਹੜੇ ਬਚਨ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਰਦਾਨਿਆ ਇੱਕ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਸਾਂਭਣਾ ਹੈ, ਦੂਸਰਾ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਕਟਾਉਣੇ ਆਦੇ, ਅਤੇ ਤੀਸਰਾ ਹੁਣ ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਖਲਾਸੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਮੰਗੀ ਨਾ, ਪਰ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਸਿੱਖ ਹੋ ਕੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸ ਕਿਸ ਨੂੰ ਪੂਜਦੇ ਹਾਂ। कोई असी पंडित नहीं छड्डिया, कोई धर्मी गुरु नहीं छड्डिया, कोई डेरेदार नहीं छड्डिया, कोई पखंडवाद वाला जिन्ने किले जाते इन्होंने किसी ने नहीं छड्डिया। भाई हर ताके गुरु का सिख अग जाके आदि शीश में झुकाउंदा है। पर कदे मरदाने नूं गुरु नानक देव जी ने कहा सी मरदानिया तू गुरु नानक दा मरासी है, तेरा सिर अज तो बाद किसी के दर ते झुकना नहीं चाहिए। जे तेरा सिर झुकेगा साडा पहला झुक जाना, जो तेनू चाहिए तू मेरे को आके तेनू देवांगा। पर अज समा होया, समा बीतदा बीतदा आपो अपनी चाल चलदा होया, अज गुरु नानक देव जी अगे मरदाना जी एक जंगल दे विच बैठे हैं। मरदाने ने अगे रबाब नूं लपेटिया कपड़े के अंदर अते गुरु नानक देव जी दे अगे रख दित्ती। हुण संगत जी थोड़ा जिहा ध्यान देना कि गुरु नानक देव जी के मरदाने का प्यार कितना कोसी, क्योंकि गुरु नानक देव जी ने मरदाना बाबा दे के बुलाता सी। और मरदाना कहन लग्या कि हे बाबा असां नूं हुण घरे जाण दिओ। वो कवि अपनी किताब दे विच लिखदा वो कहता कि असां नूं हुण घरे जाण दिओ। गुरु नानक देव जी कहन लगे दस मरदानिया की गल होई है, काबू साडा साथ छड्डण लग्या है। मरदाने ने हाथ जोड़ लै कहन लग्या बाबा ना तेनू भुख लगती है, ना तेनू टे लगती है, ना तेनू परिवार का फिक्र है। मैनू भुख भी लगती है, मैनू टे भी लगती है। ओडे राक्षस को मैं फसा, बली कन्हारी को जाके मैं फसा, जिथे भी जाना मैं बली का बकरा बन जाता हाँ। जाना आगे वर्गा कर लै, मेरी भुख भी मिटा दे, मेरी टे भी मिटा दे, जब फिर मैनू छुट्टी दे दे, मैनू घरे जाण दे। हुण गुरु नानक देव जी मरदाने नूं मनाउंदे हन, कितना को प्यार होएगा संगत जी। गुरु नानक देव जी मरदाने नूं कहण लगे कि मरदानिया जे तैनूं भुख ना लगदी ते कोटे राक्षस दा उद्धार किन्ने करना सी, जे तैनूं टे ना लगदी बली कन्हारी दा उद्धार किसने करना सी। तेनू भुख लगी ताई का बली कन्हारी दा ते लगी बली कन्हारी दा उद्धार होया। तेनू भुख लगी कोटे राक्षस वर्गे सज्जन ठग वर्गे सज्जन बन गए, एक दी भुख दी करके ही वो रब दी लैण ते आए हन। हुण अज आखिरी समा मरदाने का समा आपो अपनी चाल चलदा होया। मरदाना गुरु नानक देव जी की गोदी दे विच सिर रख के पिया है, आखिरी श्वासां दे विच है, शरीर त्यागण लग्या। हुण जदों शरीर त्यागना है गुरु नानक देव जी कहण लगे मरदानिया तू साडे नाल 50 साल कीर्तन कीता, दस तैनूं की देईए, तेरी उम्र वधा दईए, तैनूं स्वर्गां दा राज दे देईए, जब तेरी कोई कबर बना दईए, तेरा कोई मंदिर बना दईए। और मरदाना कहण लग्या महाराज आप जी ने इतना समा ला के इस पंज भौतिक शरीर के विचों मेरी आत्मा को कढ़िया है, मैनू ये समझाया मेरा शरीर नासवान है, मेरा शरीर नासवान है, पर फिर तुसी मैनू एक पत्थर की मूर्ति विच पाउण लगी हो। मारे कहण लगे मरदानिया तू दस तेरे वास्ते की करिए। और मरदाने ने हाथ जोड़े हन। मरदाना कहता महाराज तुहाडे ऊपर मेरा थोड़ा जिहा कर्ज है, और गुरु नानक के ऊपर मरदाने का कर्ज है। महाराज कहने लगे दस मरदाने काहदा कर्ज? मरदाना कहने लगे महाराज एक समा याद करो जो बचपन की अवस्था के विच तुहाडी उंगल फड़ के मैं अपने घर को तुहाडे घरे छड्ड के आया सी, अज वही समा दोबारा लिया दिओ, करो कृपा अज तुसी मेरी उंगल फड़ो अते मैनूं सचखंड दे दरबार छड्ड के आए।
ਕਦੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰੇ ਛੱਡਣ ਗਿਆ ਸੀ ਛੋਟੀ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਉਂਗਲ ਫੜ ਲਿਓ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸੱਚਖੰਡ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਛੱਡ ਕੇ ਆ ਜਾਏ। ਮਾਰੇ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਜਾ ਮਰਦਾਨਿਆ, ਜੋ ਤੇਰੇ ਮਨ ਦੀ ਤਮੰਨਾ ਉਹ ਤੇਰੀ ਪੂਰੀ ਹੋਈ, ਤੈਨੂੰ ਇਸ ਸੱਚਖੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਗ੍ਹਾ ਮਿਲੀ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਡਾ ਇਹ ਨਾਮ ਲਵੇਗਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਮਰਦਾਨਿਆ ਦੁਨੀਆ ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਯਾਦ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੋ ਗੁਰੂ ਪੀਰ ਹਨ ਉਹ ਲੇਖਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਸਿਰਫ ਇਹ ਗੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮੱਥੇ ਦੇ ਲੇਖਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਬਾਬੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਕਿਰਪਾ ਕਿਛੂ ਨਾ ਹੋਵੇ ਲਿਖਿਆ ਤੋਂ ਸੰਯੋਗ, ਜੋ ਸੰਯੋਗ ਤੋਂ ਲਿਖਿਆ ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਹੀ ਮਿਲਣਾ ਹੈ। जब दांत दिए कब दूध दिया, अब दांत दिए क्या आनना दी है। क्यों बंदे जब तेरा जन्म होया, तेरे जन्म होने तो तकरीबन 20-22 साल तेरा पहला दुध का तेरा रब ने उपलब्ध बना के कर दिता। अज तेरा जन्म होया है, और तेरे दंद नहीं सी, तेनू एक नीर के प्रति एक दुध के प्रति तेरा जीवन उसके नाल गुजार होया। अज तेनू दंद दित्ते आ रब, रोटी भी तेनू देवेगा। इस करके मारे कहते हैं कि लिखण वाला करतार है, मत्ते दे भागां नूं वो मिटा सकता है, पर बंदा जदों उन्हां दी शरण दे विच आ जावे। भागी मेरा प्रभ मिलै तां ते सब वियोग, मज भागी मेरा प्रभ मिले, जदों किते वड्डे भाग जाग पैण इस जीव ते, फिर वड्डे भागा करके मेरा प्रभ मिले, किते मेरा प्रभ मालक मेरा खसम मिल जावे, फिर उतरे सब वियोग। जिन्ने भी वियोग कहिए विछोड़े हन, दुख हन, तकलीफां हन, बड़े करके सारे ही उतरे के लिए उतर जाते हैं। और उतरते कदों हन, जदों किते वड्डे भागा करके वो वाहिगुरू की प्राप्ति हो जाए। क्योंकि जिन्ने भी वियोग हन विछोड़े हन वो सतगुरु की कृपा करके ही दूर हो सकते हैं। बंदा चाहे किसी काम करके भी दुखी है, जब सतगुरु जी कृपा करते हैं फिर उस बंदे के सारे के दुख दूर हो जाते हैं। नानक कहो प्रभ राख ले, मेरे साहिब बंदी मोच। गुरु नानक देव जी के नाम की मोर ला गुरु अर्जन देव जी कृपा करते हैं कि प्रभ नानक को प्रभ राख ले है। हे प्रभु मेरे मानक है, मेरे कसम कृपा कर मैनू गरीब नू, मैनू निमाणे नू, मैनू निताणे नू राख ले है। तू ही रखणहार है, आप ही कृपा करो मेरे साहिब बंदी मोच। आप ही मेरे साहिब हो, मेरे दाती हो, आप ही मेरे बंधना नू कट्टणहार हो। क्योंकि आप ही जिन्ने भी बंधन हैं उन्हां सारे बंधना नू आप कट्टणहार हो। क्योंकि संगत जी जिन्हां के अस्थानां ते बैठे हाँ, मेरी पीढ़ी के मालक अजान बाहु बंदी छोड़ दाते, उन्होंने बंदी छोड़ दाते भी कहा जाता। क्योंकि हिंदुस्तान का नक्शा बदल के रख दिता सी मुगल हुकूमत ने। आज दिवाली मनाई जाती, ये भी गुरु हरगोबिंद साहब जी की कृपा है हिंदुओं के ऊपर। आज हिंदुओं का जितना भी साम्राज्य है ये सारा खत्म हो जाना सी जे कि गुरु हरगोबिंद साहब जी महाराज 22 घर के राजियां नूं 52 राजियां नूं किले दे विचों आजाद ना कराउंदे। गुरु हरगोबिंद साहब जी ने 52 राजियां नूं किले विचों आजाद कराया। सिख नूं 2 तलवारां आम पैंदियां बीरी अते पीरी दी, आदे सिख नूं 70 धारी कीता, आदे सिख नूं सूरमे बनाया। आदे सिख नूं कहा कि तू सूरमा बन के रहना है। भजन बंदगी बड़ी हो गई। गुरु नानक तो गुरु अर्जन तक, गुरु अर्जन देव जी महाराज जी ताई भजन बंदगी हुई है। उदों तक असी माला फेरी है, पर माला की रक्षा करके माला की रक्षा वास्ते असी अकाल का तख्त सिद्ध दिता है। और नाल सिख दे कोल माला के नाल किरपान भी होगी, सिख दे कोल बरछा भी होगा, सिख दे कोल खंडा भी होगा, सिख दे कोल तीर कमान भी होगा। ये कृपा गुरु हरगोबिंद साहब जी ने सिखा के ऊपर की है। क्योंकि समय समय के लोड़ मुताबिक
जिस तरह का समा तब्दील होता गया गुरु के सिखा दे विच तब्दीली आउंदी गई। अज समा आया जदों गुरु अर्जन देव जी महाराज नूं तत्ती लोह के ऊपर बिठा के शहीद कर दिता गया। फिर गुरु हरगोबिंद साहब जी ने सिखा को हुक्मनामे भेजे कि गुरु का सिख एक जवानी भेंट करे, छत्र आदि कोल रखे, आदि कोल रखे, क्योंकि गगन मामा बाजी ऊपरे उन्हें सामने कहो खेत जो मन जो सूरमा अब जूझन को दाव 1600 पहचानी है तो लड़े जिनकी हेता पुरजा पुरजा कट मरे कबू न छाटे खेता। ये वक्ता गुरु ने सिख को समझाई है। गुरु ने कहा सिखा जिते तेरा चुकल का समा हो चुक भी जाने चूकार अजाम हीरते दर गुजरता हलाल अर्थ बुर्तन बार शमशीर डाकता गल पीर नाल भी करे अपील नाल भी करे जो तेरी पीर अपनी अपील खत्म हो जाए फिर सिख का हाथ तलवार की मुट्ठी के ऊपर चला जाना चाहिए। आज जो गुरु घर के विच सिख पंथ के विच धीरमणियां वर्गी मसंद राम राइया वर्गे मसंद अज भी कई पैदा होए पे हैं जिहड़े सिख पंथ दे विच इहो ਜਿਹੇ कीड़े बने पे हैं कि सिख पंथ नूं आपस दे विच फोड़न दी पर लगे हुए हैं कि किते सिख नाल सिख मिल ना जावे। उन्हां सज्जणां नूं दास वल्लों भी बेनती है अति हुण प्रबंधकां नूं सारिਆਂ ਵੱਲੋਂ कि महाराज ने सिख नूं हुक्म कीता है कि चूकार अजाम हीरते दर गुजरत हलाल अर्थ बुर्तन बार शमशीर दफ्त कि जब सिख तेरा दिल अपनी अपील के नाल करेगा जो दिल अपनी अपील सिख की खत्म हो गई फिर दशमेश पिता गुरु गोबिंद सिंह का सिख नूं हुक्म है कि सिख अपनी तलवार को कढ़ के अति कृपा नूं कढ़ के मैदानी जंग विच आ सकता है। इस करके भाई सज्जनों बेनती है समा रहते सुधर जाओ, समा रहते अपने आप विच आ जाओ। जे किते समय ने हालात बदल दिते फिर बाद विच ना कहो कि गुरु के सिखा ने गुरु के सिखा वाली कर दी, क्योंकि महाराज ने गुरु के सिख नूं लड़ना भी सिखाया है। गुरु के सिख नूं मैदानी जंग दे विच महाराज ने आके 2 साहिबजादे शहीद करवाए, बाबा अजीत सिंह बाबा जुझार सिंह नाल ये दस्सिया है कि दुश्मन का फट किवें सीने ते खाना है अते दुश्मन नूं भी फट किवें देना है। ये सारिया जोता गुरु महाराज दे के गए हैं। इस करके महाराज कृपा करन हर एक नूं समर्थ बख्शण, क्योंकि जो आपा अपना लगा के इस दर ते आ जाता है उसका भला हो जाता है। जो आपा अपना नहीं कमाਉਂਦਾ हौमे दीनत रोग है, हौमे का बड़ा वड्डा रोग है। जो बंदा कहता हौ फिर बंदा बिना मारिया कोई बंदा करे कि मैं हाँ, जो बंदे के विच मैं आ गई बंदा उदों खत्म हो जाता है। इस करके भाई बेनतियां हैं कि समा रहंदियां भाई सुधर जाओ, चंगे कर्म करो जिस करके पंथ दे विच भी सुधार आवे, पंथ दे विच कोई इहो जी दुखता ना पवे, पंथ दे विच सिख आपस विच मिल के रहण, चाहे वो किसी बराबरी का सिख होवे। इस करके भाई बेनतियां हैं अते महाराज कृपा करते हैं कि नानक को प्रभ राख लिया मेरे साहिब बंदी मोज, हे मेरे बंदना नूं कट्टण हार, हे मेरे दाते, हे मेरे मालक आप जी कृपा करो सानू रख लियो। असी गरीब हाँ निमाणे हाँ निताणे हाँ ना ताण दीवान तू ही मेरे स्वामी, मैं खुद आपकी अरदास मैं होर थाओ नाही, जिसने करो विनंती मेरा दुख सुख तुझ ही पासे, आप ही मेरे दाती हो आप बख्शणहार हो जी। तत्त होवे साध संग बिरसै सते सोच। आखिरी पंक्ति दे विच सतगुरु जी कथन करते हैं कत्तक होवे साध संग बिरसे सते सोच, कि कत्तक दे महीने दे विच होवे साध संग किते साधुआं दी संगत दी प्राप्ति हो जावे, किते उस रब दी साधुआं दी संगत दी प्राप्ति हो जावे। बिरसे सते सोच फिर जो मन दियां सोचां हैं विकारां वाले पासे माड़े फुरनियां वाले पासे जिन्नियां भी सोचां हैं फिर वो सारियां ही सोचां खत्म हो जांदियां हैं। सतगुरु जी की कृपा करते हैं वो साधुआं की संगत प्राप्ति हो जावे।
पास में बड़ो अंतरो जान वे लोहा कंचन करे वे करे आपस मान ओ आदि वर्गा एक काम करनी है जो साधुओं की संगत के विच जीव जाता है फिर उसका उद्धार हो ही जाता है। सतगुरु जी कृपा करन मेर भरिया हथ रखन समूह संगत का धन्यवाद प्रबंधक जना का भी धन्यवाद जिन्होंने दास नूं आप संतां दे दर्शन करन दा समा बख्शिया है जिस करके आप संतां दे दर्शन कीते हैं। सतगुरु जी कृपा करन अपने सारे ही सिखां दे विच आपस दे विच प्रेम प्यार इतफाक चढ़दी कला कीतियां दाता बख्शण माड़े कर्मां तो बचा चंगी कर्मां कीतियां दाता बख्शण किते महाराज कृपा करन सानू एक निशान दे हेठां खड़ा कर देण। अगे समा हुंदा सी भाई जदों गुरु के सेवा एक ही निशान दे थल्ले ही कत्तर हुंदे सन पर उदों राज भी कीता खालसे ने महाराजा रंजीत सिंह दे समय बाबा बंदा सिंह बहादुर दे समय खालसे ने राज कीता पर खालसे का राज कदों खत्म होया जदों घाटे गद्दार दूसरे दे विच जाके मिले। इस करके भाई गद्दारां तो भी बचना है। महाराज कृपा करन सारे संतां नूं जी आया नूं सारे प्रबंधक जना वालों गुरुद्वारे की कमेटी वालों ग्रंथी साहब वालों दास वालों आप सारे संतां नूं जी आया नूं इन्हां नूं विचारा करदे आ बेअंत तमाम भुल्लां होईयां दास आप संतां दा बच्चा है आप संतां बख्शणहार हो किसी को कोई गलबात कर लगी होवे भाई वो दादी झोली विच पा सकदा है। आओ भाई बुलाओ फतेह वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। वाहिगुरू जी का खालसा श्री वाहिगुरू जी की फतेह। इतने साढ़े मानयोग भाई सरदाई गुलाब सिंह जी कथावाचक जो आप जिस क्षेत्र में सुशोभित करते हैं बड़े प्यार सत्कार के नाल अज मैं रिंधी संग्राम व्याख्या राही आप संगत तक पहुँचाया है। गुरु कृपा कर सारे भाई साहब भाई गुलाब सिंह थे उसी तरह ही मेरा बना के रखना और संगत की सेवा करते रहें। गल इतिहास की होती है जब तक इतिहास में पूरे व्याख्या के नाम आप तक ना